So periodic table and lecture number 9, date 14th August. बोलो. गुड मॉर्निंग सर. सर लास्ट लेक्चर 9 था, ये 10th लेक्चर है सर. ये 10th है. ओके ठीक है 10th. तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या रह गया था. मैंने आपको बोला था इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसका मतलब यही है. इनर्ट पेयर का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पेयर which is not participating in a bonding. Electron pair means two electrons. Electron pair which will not participate in bonding. है ना. कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर which will not participate in bonding. डिस्कशन ऑफ फाउंडेशन बिल्डर डिस्कशन करा लेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन ही डिस्कशन है. ठीक है. ये छोटी मोटी चीजें हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. अब क्यों नहीं करेगा वो समझते हैं. तो आई विल राइट, लेट्स से थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को लिख लेते हैं. तो आई विल राइट फ्रॉम हियर बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, गैलियम, indium, thallium, and this is going to be carbon, silicon, germanium, SN, tin, lead, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ठीक है. ये आपके 13th, 14th and 15th ग्रुप है. दिस इज 13th ग्रुप. ग्रुप ये 14th ग्रुप है and this is 15th group. Now if you are going to see the electronic configuration, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा. Let's say we can see, let's say 13th group. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Electronic configuration is NH2NP1. 14th group NH2NP2, and 15th group NH2NP3. Now we will write element. So this is boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, tin, Pb, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ठीक है. अब यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर लिखना हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिखना हो तो क्या होगा? बोरॉन का 5, फिर 13, 31, 49, 81, 6, 14, 32, 50, 82. इनके बीच में डिफरेंस 8 का, फिर 18, फिर 18, फिर 32. ओके. 7, 15, then we can say 33,
51 and then 83. Okay, so we have written the atomic number also. Now what I want to explain over here is, for let's say boron, there are 3 electrons in outermost shell, and all these electrons can participate in bonding. And that's why you have seen the examples like, you have seen examples like BCl3, AlCl3, right? ऐसे बनेगा gallium, let's say GaCl3, InCl3, like that. ठीक है? If we are going to talk about, so I'm not writing this, just I'm trying to explain कि all 3 electrons are going to participate in bonding, then how compounds are going to look like. Similarly, we are going to talk about carbon. Carbon is having 4 electrons in outermost shell. All 4 can participate in bonding. So you can see CCl4, SiCl4, like that. Okay. And nitrogen is having 5 electrons in outermost shell. There is a constraint कि nitrogen का electronic configuration जो है, उसमें only 3 electrons are required to gain stable configuration. So for nitrogen, the highest possible valency is only, let's say maximum will be 4. तो अभी यहाँ पे देखेंगे 3 की ही जरूरत है, तो 4 अलग केस अलग है, वो है NH4+, राइट? उस पे भी अभी नहीं आ रहे हैं. Let's say you can see 5 will not happen here. ये इसको एक छोड़ देते हैं exception NCl3, but you can see PCl5 here, AsCl5 here, है ना, SbCl5 here, like that. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ऑल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक, राइट? बट इन केस ऑफ दिस ग्रुप जो 80 के बाद है, राइट, यहाँ पे, तो इससे पहले क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. द रीजन इज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स of thallium, lead and bismuth, s electrons, 6s electrons of thallium, lead and Pb, है ना, do not participate in bonding. This is generally, मतलब ऐसा नहीं, हमेशा नहीं, कुछ cases हैं जिनमें participate करते हैं generally, and that's why, and hence these electron pair, these electrons are called inert pair. And why these are not participating in bonding? So reason is over here. Let's say अगर मैं helium की बात करूँ, तो reason is, what is the electronic configuration? So 54 xenon. Then you are going to write 6s2, 4f14, right? First, let's say 5d10 and 6p1. 54, 56, 56, 14, 70, 80, 81. Now these electron, ये जो s electron है, right? These are inert pair. क्यों inert pair है ना? Because of poor shielding, due to poor shielding by 4f subcell or 4f electrons, Z effective increases. Z effective increase करेगा तो जो s orbital में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएंगे, and that's why, है ना, those are not going to participate in bonding. समझ में आई बात? ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही? यस और नो? तो ये सबके साथ होगा, थैलियम, लेड एंड बिस्मुथ, इन तीनों के साथ यही होता है, एंड दैट्स व्हाई 6s के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में. ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखो, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन. तो जनरली आप सोचोगे ये 3 इलेक्ट्रॉन शुड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आउटर मोस्ट नहीं है, ये n=4 है, ये n=5 है, n=6 इज आउटर मोस्ट सेल, है ना. सबसे बाहर वाला कौन सा है? ये वाला, राइट. इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, जनरली 3 इलेक्ट्रॉन शुड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, राइट. बट यहाँ पे ये 3 नहीं करते, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग.
और ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में? इसका रीजन है कि बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग, जो ये 4f के कारण पुअर शील्डिंग लग रही है, इसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ गया, एंड बिकॉज द जेड इफेक्टिव हैज इंक्रीज्ड, the electrons are more let's say attracted towards or penetrated towards nucleus. ठीक है, and that's why those are not available for sharing. ठीक है, let's say अगर कोई कंपाउंड बनता है, मान लो A और B के बीच में कंपाउंड बनता है, then how they are like going to form? So they have to share the electron. They have to share the electron over here. ठीक है, now if this electron is more let's say tightly bonded with or more attracted towards the nucleus, है ना, ये ज्यादा tightly bonded हो, then what will happen कि B की ability होनी चाहिए कि B should be able to let's say pull the electron towards itself and the effective overlapping takes place. ठीक है, अगर ये इसकी तरफ जितना ज्यादा बॉन्डेड है तो B की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करे एंड देन द शेयरिंग विल हैपन. ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग? कि ये दो एटम है, देयर इज टू एटम्स, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, लेट्स से one electron over here and one electron over here. So what is going to happen between them? अगर ये दो अलग अलग एटम है, इनके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा, इनके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा. सारे फोर्स हमने लिख लिए, राइट? ठीक है, नाउ देयर इज इन दिस सिस्टम देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स वी हैव रिटन. सो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है एंड सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन लग रहा है. Obviously attraction forces are dominating over here, that's why these two atoms are coming towards each other, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, and then the attraction force is so dominant कि ये एक दूसरे के पास ही नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, right? Overlapped हो रहे हैं. This is covalent bond, right? So here the thing is this should be able to, इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है कि ये जो इंटरेक्शन है इसका, है ना, इससे लगने वाला, और ये जो इसके बीच का अट्रैक्शन है मेनली, दिस शुड स्टार्टेड टू डोमिनेट, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? वरना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये सुनो, इतनी बात समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं गया भाई. बॉन्ड बनाने के लिए लेट्स से मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन का एटम है, लेट्स से क्लोरीन का एटम है, लेट्स से जस्ट थिंक अबाउट इट. ठीक है, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना है HCl, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगी. तो उसमें कौन कौन से अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स चलेंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए अट्रैक्शन फोर्स शुड विन, पहली बात. दूसरी बात कि अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो इतना तो होना चाहिए कि इसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर पाए ओवरलैपिंग में, राइट? बॉन्डिंग तभी बॉन्ड शेयर होगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइटली हेल्ड कर रहा है, this nucleus is holding this electron let's say more effectively. So can you feel like कि यार ये इलेक्ट्रॉन इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बॉन्डिंग, and this is what exactly happening over here. This electron is participating in bonding 6p1, but ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा बॉन्डिंग, and that's why it is called inert pair. inert pair क्या होता है inert pair के कारण? तो let's understand. Due to inert pair effect, आपको ये दिस इज द होल पॉइंट कि आपको ये समझ में आया इनर्ट पेयर क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ाने से क्या हो रहा है, राइट? देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस. ठीक है, नाउ ड्यू टू इनर्ट पेयर, ऋषिका समझ में आ गया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऋषिका, रितिशा,
right? Okay, so inert pair, due to inert pair, ठीक है. And now there is a one term is called oxidation state. ठीक है. What is the term is called oxidation state? I should write it over here. ये यहाँ पे लिख लेता हूँ. So oxidation state में यहाँ लिख रहा हूँ. Oxidation state means the apparent charge which is apparent or actual charge present on the element. तो जैसे boron है, if the boron is attached with 3 chlorine, now you know the electron negativity value, so you can understand chlorine is more electron negative. So boron is going to lose all 3 electrons, so it is going to get 3 delta positive, or you can say 3 plus. So oxidation state on boron is going to be 3 plus, right? Yes. ठीक है. So the oxidation state मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे general common oxidation states I am going to write. So oxidation states are +3. Let's say if one electron only going to participate in the bonding, then केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है ना पार्टिसिपेट कर रहा है तो +1. ठीक है. इसमें similarly what will happen, all 4 are participating in bonding, then +4 can come and +2 can come. ठीक है. And similarly +5 and +3. So due to inert pair effect, due to inert pair effect, stability of lower oxidation state increases. Due to inert pair effect, stability of lower oxidation state increases down the group, and stability of higher oxidation state decreases down the group. इसका क्या मतलब है समझते हैं. So इसका मतलब ये है, let's say for boron, let's say we have to write +3 and boron is in +1. Hence for boron, let's say boron, aluminium, gallium, indium, for all these elements, है ना, +3 is more stable than +1. मतलब अगर कोई compound होगा AlCl3 and there is a compound AlCl which is going to be more stable, AlCl3. In fact, AlCl is so unstable that we don't see this one, right? ठीक है ना, नहीं बात समझ में आ रही. +3 और +1 में कौन ज्यादा स्टेबल है, +3, right? And for thallium, +1 is more stable than +3. So अगर मैं, if I am going to say TlCl and I am going to say TlCl3, then I will say TlCl or Tl in +1, thallium in +1 is more stable. Rather than writing AlCl3, particularly I will write Al3 plus and Al plus. तो ये मतलब जनरल केस हो जाएगा, right? I have written particular case. I am going to write Al3 plus is more stable than Al plus 1. And for thallium, let's say similarly, +3 is less stable than +1. ठीक है. तो Tl+3 is less stable than Tl plus. तो अब हो क्या रहा है, let's say if I am going to talk about, let's say अब मैं अब लिख ले रहा हूँ, let's say I am writing B3 plus Al3 plus, let's say Thallium 3 plus, Indium 3 plus, and I'm going to write Thallium 3 plus. And I'm writing B plus 1, B plus, sorry, Al plus 1, है ना, Ga plus 1, In plus 1, and Tl plus 1. I'm writing the stability order. So over here, this is decreasing down the group.
B3 plus is more stable, and then slowly these are less stable. Similarly, what is happening over here? Over here we can say this is going to be increasing down the road. And you have not seen B plus 1, Al plus 1 है ना, गैलियम का plus 1 में होता है, but it is not very let's say stable. तो मेजरली आपको जो plus 1 दिखता है वो थैलियम का दिखता है. ठीक है, ये एरो का साइन केवल इसलिए लगाया कि वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, राइट. यहाँ पे आई हैव रिटन डिक्रीज है ना, डाउन द ग्रुप. तो इफ आई एम नॉट गोइंग टू लेट्स से राइट द एरो, एरो से मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बात समझना. आई विल राइट लेट्स से डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. ठीक है, कोई कंफ्यूजन ओवर हियर? समझ लेते हैं. I'll give you a brief idea. In 13th, 14th, 15th group, due to let's say in the last let's say 6th period, है ना, in the 6th period, what is happening due to presence of 4f subcell, the Z effective increases. Z effective increases. That's why the outermost cell electrons, 6s electrons, are more let's say attracted towards the nucleus or more penetrated towards the nucleus, and hence do not let's say generally participate in bonding. And that's why for thallium or let's say lead or let's say bismuth, only p orbitals are going to participate in bonding. So I'm saying the same thing. I'm saying that stability of oxidation state, lower oxidation state, increasing down the group, because for thallium plus 1 is more stable, है ना, and stability of higher oxidation state is decreasing down the group. Clear है? No, inert pair effect is not exception. It is telling you the reason why lower oxidation state is. मतलब अगर जैसे देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक्सेप्शन आएंगे, अभी मैं बताऊंगा. ठीक है, inert pair effect is the phenomena which is going to explain की stability of oxidation state, कि कौन सा वाला एलिमेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा. ठीक है, across the period we cannot compare, so that is not the important point, because there are different oxidation state, there is nothing common across the period. बोरॉन का +3 है, कार्बन का +4 है, बिस्मथ का मतलब नाइट्रोजन का लेट्स से है ना ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा. तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे इनमें. इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से तो नहीं बोल सकते. नहीं सृष्टि, आई हैव सेड द कंडीशनल स्टेटमेंट. इन चार के लिए है ना, थैलियम के लिए +3 is more stable than, sorry, +1 is more stable than +3. all these three element, all these four elements कौन ज्यादा स्टेबल है? +3 ही ज्यादा स्टेबल. बट हो क्या रहा है, +3 में धीरे धीरे स्टेबिलिटी कम हो रही है, राइट ना. अभी इंडिविजुअल में कंपेयर कर रहा हूँ, इन कहां तक लेट्स से है ना +3 और +1 में +3 ज्यादा स्टेबल है, बट रिलेटिवली +3 की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और +1 की रिलेटिवली स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, एंड फाइनली +1 की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो +3 से ज्यादा हो गया बस. तो थैलियम के लिए हम बोल रहे हैं कि +1 इज मोर स्टेबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो.
Done. Yes, this same stability order we are going to write 14 and 15 group. So let's say, but there is exception. So we will write some exception over here in 13th group. So exception is, let's say, TL I3 is stable. Stable, or in fact, TL X3 is stable. So now the question is how this is possible. For thallium, +1 is more stable. TL +3 is not that much stable. Then how it is going to be stable? TL I3 का मतलब ये हुआ कि 3 iodines are connected. So reason is stable as TL +1 I3 minus. So how this is stable? Not like TL3 plus 3I minus, right? No, it's correct and this is wrong. कई बार ये क्वेश्चन एक्सेप्शंस में कई बार आ चुका है IIT में, राइट? ऐसा कुछ भी होगा ये स्टेबल बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म I3 minus. So have you seen this compound Ki3 कभी? Ki3 देखा है कभी? Ki3? Anyone? No. ठीक है. So okay. अच्छा तुमने ये सुना है iodine is very good disinfectant or let's say in many let's say जो कहीं पे चोट वोट लग जाती है तो उसके लिए जो ट्यूब आते हैं उनमें आयोडीन होता है. टिंचर, yes, iodine tincture, right? स्कूल में पढ़ा था. So now tell me, I2 is non-polar. I2 is non-polar. This is you can understand I2 is non-polar. So how I2 is soluble with water? तो precipitate बन जाएगा, अलग इकट्ठा हो जाएगा, right? So how it is going to gel up with water? So reason is Ki3. Ki we are going to add with I2. Now this is going to convert into Ki3. Ionic compound. Soluble. हो गया? Right? Now this Ki3 is having free I2 hidden. इसमें free I2 hidden है. And this free I2 is going to work as disinfectant. ठीक है? आगे तो यहाँ से मैं बस इतना समझाना चाहता था कि I3 में कैसा होता है K plus I3 minus. So I3 minus exists. I just want to tell you indirectly like this. I3 minus exist करता है और आपने देखा होगा तो I3 में देखा होगा, right? This is the exception. It looks like it is +3, but it is not. It is +1. Another exception. TLF3 and TL2O3 है ना are stable where thallium is in +3 oxidation state. So reason क्या reason है why है ना this is in +3. यहाँ पे F3 minus नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे क्या है F-1 में है. थोड़े exceptions हैं, so be careful. ठीक है. अब ऐसा reason क्यों है? So we are saying कि fluorine and oxygen are so much electron negative. Oxygen and fluorine are so much electron negative that they can pull the electrons from the let's say 6s orbital and these electrons are going to participate in bonding. अभी हमने क्या बताया था
कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण Z effective बढ़ गया, and because Z effective has increased, that's why electrons are more penetrated towards the nucleus, and that's why they're not participating in bonding. But let's say someone is more, let's say, है ना, जो ऐसे समझो कि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर पावरफुल वसूली करने वाला आदमी आ गया है ना, तो क्या करेगा, राइट? It is able to, let's say, pull the electrons from inner cell. तो ये अंदर से कितना भी penetrated क्यों ना हो, इसको अपनी तरफ पुल करके आया, और it has, let's say, able to let's say do the bonding over here. ये बात समझ में आ रही है कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर so much electron negative that they are able to, let's say, form the bond with 6s orbital. We can write fluorine and oxygen are highly electron negative, and hence electron negative means greed for electron is more, so they are able to pull the electrons from the thallium, and hence able to pull 6s electrons for bonding. इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? So I have generally said that for thallium +1 is more stable than +3. Then I have said two exceptions. One exception is where it looks like it is in +3 but it is not, it is in +1. Then I have told you कि TLF3 and TL2O3, where thallium is going to be, indeed is going to be in +3 oxidation state. So how it is possible? So the possibility is fluorine and oxygens are very highly electron negative, and they are able to pull the electron from 6s orbital for bonding, right? Clear है ये बात? Any doubt till here? Maynard pair effect. ठीक है. राइट, अब समझते हैं कार्बन फैमिली. अच्छा, इससे एक और बात, एप्लीकेशन. अच्छा, एप्लीकेशन में दूसरे उसमें दिखाऊंगा, राइट, because that is more prominent one and relatable one. Let's say we will write 14th group, then I will tell you another application. 14th group. So for 14th group we can say carbon n +4 and carbon n +2, which is going to be more stable? +4. Carbon n, let's say silicon n +4, silicon n +2, which is more stable? +4. ऐसे ही germanium n +4, germanium n +2, which is more stable? +4. Sn n +4 and Sn n +2, which is more stable? So +4. And Pb in +4 and Pb in +2, which is more stable? Pb2+. ठीक है. And over here till here we can say down the group of stability of +4 oxidation state, down the group stability of +4 oxidation state decreases and +2 oxidation state increases. ठीक है. अब कार्बन +2 में कहां पे होगा बताओ मुझे? कार्बन का +2 में कोई कंपाउंड देखा है? अच्छा, कार्बन का CO2 में +4 होता है.
CH2 में प्लस हो, CO, एग्जाम्पल इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, विच इज एक्सेप्शनली हाई। जनरली कार्बन +2 में होता नहीं है, बट CO इज एक्सेप्शन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी जो कंपाउंड है, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट CCl4 और CCl2, CCl4 is going to be stable. In fact, CCl2 तो स्टेबल होता ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। CaC2 is कार्बाइड, ठीक है, CaC2 is कार्बाइड। एनीवे, कार्बन के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, तो इट इज नॉट ओनली +4 एंड +2 फॉर कार्बन। कार्बन के लिए बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। लेट्स से फ्रॉम CH4 to CCl4 you can see between carbon and hydrogen, carbon is more electronegative, so that's why carbon is going to pull all the, let's say, electrons from hydrogen, right? So it is -4, and carbon over here is losing electron from due to chlorine, so that's why +4. So for carbon the oxidation state can vary from -4 to +4. तो केवल दो ही नहीं है stable, दो ही state नहीं है, right? But when we are comparing, let's say, +4 and +2, we are going to say +4 is more stable, ठीक है। +4 over here, ये वैसे ही पैटर्न है, बट इसमें एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ कैसे आता है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि देखो, अगर मान लो Pb4+ और Pb2+ में Pb2+ स्टेबल है, सो Pb4+ wants to convert into Pb2+ to gain stability, right? Which one is more stable? +4 and +2 में +2 is more stable. So Pb4+ अगर कहीं पे है भी, then it is going to convert into 2+ to gain stability. It wants to convert into +2. ये बात समझ में आ रही है? Gaining electron, how it is able to get let's say 2+. So Pb4+ will gain electron to form Pb2+. यहाँ पे क्या हो रहा है? Gain of electron. Gain of electron means reduction of Pb4+. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ Pb4+, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इनटू स्टेप्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। वी हैव ऑलरेडी सीन कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है, वो भी लेड के लिए, है ना। अबव 4 एलिमेंट्स 4+ इज मोर स्टेबल। किसी ने अगर मान लो इन दोनों में कंपेयर करने को बोला, लेट्स से somebody asked लेट्स से कंपेयर ओवर हियर 4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, we can say carbon 4+ is more stable than silicon 4+, है ना। ये कंपैरिजन, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका कंपैरिजन ये है ना। फिर देन जर्मेनियम 4+, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे then you will understand कि what they are asking, है ना। and if they are asking about 2+ oxidation state, then we can write like this, ठीक है। ठीक है, right? So there are two order, one between same, let's say for same element, and one for same oxidation state, ठीक है। 2+, yes, 2+, right? But now let's focus over here. Between +4 and +2, which one is more stable for lead? Pb2+. So Pb4+ wants to convert into Pb2+, gain stability, because Pb2+ is more stable. How it is going to convert? By accepting electron. So gain of electron means reduction of Pb4+. अब बताओ, I have told you जब मैं reducing agent बता रहा था, and I have told you agent works for others. Agent works for others. So Pb4+ is going to reduce, then it is going to oxidize others. खुद reduce हो रहा है तो दूसरों को oxidize करेगा,
right? So that's why PV4 plus is good oxidizing agent. Yeah. Reduction of PV4 plus means, or you can say oxidation of other, hence PV4 plus good oxidizing agent. And इसीलिए तो यहाँ पे क्या समझा हमने, PV4 plus is good oxidizing agent means PbO2 convert to PbO. That is the meaning. So PbO2 is good oxidizing agent. Clear है मेरी बात? इतनी बात समझ में आई? कहीं स्टेटमेंट लिखा है PbO2, PbF4. हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेंट इज सेम थिंग. तो कहीं पे लिखा है PbF4, PbO2, then we are going to say these are good oxidizing. Now tell me another thing. Now tell me the same, let's say over here, SN2 plus is, SN2 plus is, बताओ भाई SN2 plus क्या है? Whether it is a good oxidizing agent or reducing agent. The same concept we can apply over here. Between SN2 plus and 4 plus, which one is more stable? 4 plus. So SN2 plus wants to convert into SN4 plus. SN2 plus wants to convert into SN4 plus. SN2 plus, that means wants to oxidize itself and reduces other. So that's why SN2 plus is good reducing agent. Clear है? तो ये application आ गया, ये nature बता रहा है. You might have seen this reaction कि SnCl2 is converting into SnCl4. Maybe, I don't know. कितनी chemistry तुमने सीखी है? SnCl2 goes to SnCl4. Right. So I will come to that point. आकाश, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा. I will tell you. तो पहले यहाँ पे देखते हैं. Similarly, है ना, SN2 plus wants to convert into SN4 plus 2 electron to gain stability. That means, hence, loss of electron. Then you can say oxidation of SN2 plus. अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है? SN2 प्लस में या SN4 प्लस में? SN2 प्लस में. इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 4 प्लस आया. So oxidation of SN2 plus means reduction of other. That means good reducing agent. है ना, RA मतलब reducing agent. Now what is going to happen to SN4 plus? तो SN4 plus का तो कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं ना, रिएक्शन क्या हो रही है. So can we say anything about SN4 plus? अगर SN4 plus को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो SN4 plus की रिएक्शन देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो अभी हम नहीं देखना चाह रहे. तो कुल मिला के क्या है, थैलियम, लेड एंड bismuth all are in their higher oxidation states are good oxidizing agent because they wants to lose electron, gain electron, है ना, higher oxidation state में है जैसे, right. अगर मान लो कोई कंपाउंड Tl+3 में है तो it wants to convert into +1, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तभी तो +1 होगा. इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है खुद का रिडक्शन, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर हुई ये बात? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट अगर इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक इनटू स्टेप्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. +4 और +2 में ज्यादा स्टेबल कौन? +2.
दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, दैट मीन्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन स्टेप, इट इज क्लियर. एकदम से याद करोगे तो नहीं होगा क्लियर, है ना, फिर कंफ्यूजन हो सकता है. सिमिलरली SN2 प्लस कन्वर्ट होना चाहता है SN4 प्लस में, he wants to say, है ना, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन ऑफ SN2 प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ SN2 प्लस, and then it is reduction of other to good reducing agent. राजदीप टेक केयर, डोंट वरी, है ना, बाद में लिख लेना, ठीक है. बाय द वे व्हाट इज हैपनिंग टू यू, यू आर लाइक, तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है. हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल टू 13, 14, 15th ग्रुप. अगर ज्यादा होता तो फिर मैं सबके लिए लिखा देता. का रीजन ये है कि फिर वो जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है 4F के कारण, है ना, तो स्लोली स्लोली इट इज गोइंग टू डिक्रीज, सो दैट्स व्हाई केवल 15 तक एप्लीकेबल होता है. एंड व्हाट इज दैट, थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में समझाओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, स्टेज 1 क्या है ये. सौविक, वी हैव टोल्ड यू इनर्ट पेयर इफेक्ट आने के कारण क्या हो रहा है, इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है. क्यों? क्योंकि दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. So between higher and lower, lower is more stable, है ना. What is happening over here? कहीं पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग. थैलियम के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो बस +1 आएगा, +3 नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ, है ना, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 6s ऑर्बिटल. सो वी विल से +1 is more stable than +3. Getting Sovic? These 2 electrons are not participating in bonding. अगर ये करते तो फिर, है ना, +3 स्टेबल पॉसिबल होता. और ये 2 कहाँ करते हैं, वेयर वी आर एबल टू गेट, तो ये वहां करते हैं जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. सिमिलरली यू कैन सी Pb का +4 किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ. So we can write, let's say point यहाँ पे, PbCl4, PbBr4, PbI4 are not stable, or you can say are unstable, है ना, but PbF4 is stable. The reason is same. These are not sufficiently electron negative that it can have +4 oxidation state, but fluorine is, you know, sufficiently electron negative, that's why it is going to be stable, right. Start. इसके बाद let's say, so this is हमने बता दिया है वैसे मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं. जैसे 15th ग्रुप के लिए, so you can say same thing, right. Now we are writing for last 3, mainly first 2 elements में कई सारे exception मिल जाते हैं, so comparison is little bit difficult. So we are going to say with the last 3 element, As +3, As +5, Sb +5, Sb +3, and bismuth +5 and bismuth +3. Which one is more stable? This is stable, this is stable, and here bismuth 3+ is stable. ठीक है, सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इनमें आपस में लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. So As +5 is more stable than antimony +5 than bismuth +5. And lower oxidation state same है यहाँ पे. So over here bismuth +3 is more stable than antimony +3 than arsenic +3.
तो ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट कंप्लीट, और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब थोड़ा देख लेते हैं। तो दिस इज डन, एंड ऑफ लेक्चर पीरियोडिक टेबल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर, है ना, बेसिक नॉमेनक्लेचर या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। So we are not talking about Sneha about transition element. We are especially saying 13th, 14th and 15th group. ठीक है, यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है बस वो इनमें हो रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, so multiple oxidation state है, but you can remember, if you want to write, you can remember for D block element generally +2 and +3 oxidation states are more stable. Generally +2 and +3. Write in your language if you want. +2 and +3 are more stable. So you would have seen many example like ZnCl2, CuSO4, FeCl3, right? Like that. These are the most common one. And for 4F element, 4F element, the most stable oxidation state is +3. Most stable oxidation state is +3. तो अगर मान लो लेट्स से यहीं पे एक एप्लीकेशन आ गया, अभी मैंने आपको बोला 4F एलिमेंट के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो कहीं पे लिखा है सेरियम +4, सेरियम इज 4F एलिमेंट। ठीक है, जस्ट नॉर्मल लेट्स से एप्लीकेशन देख रहा हूँ, बताओ सेरियम 4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? Cerium 4+ is oxidizing, good oxidizing agent or reducing agent? दो ही आंसर है, दोनों आ रहे हैं मतलब। सेरियम, सीरियम नहीं, सेरियम, सेरियम। पोल ले रहे हैं अच्छा, है ना। जो लोग कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस दे आर गोइंग टू से यस, और जो लोग कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस दे आर सेइंग नो। ठीक है, जल्दी बताओ फास्ट।
ठीक है भाई. Okay, almost many people have given the answer. Let's say I'm sharing the result over here. Okay, so answer is cerium wants to reduce itself, right? So hence oxidizing others, oxidizing agent. Cerium wants to go to cerium 3 plus. Right now I have told you that 3 plus oxidation state is more stable for 4F block elements, right? 4F elements. So cerium wants to convert into 4 plus to 3 plus, reduce itself, oxidizes others, oxidizing agent, right? So whoever is getting confused, just always remember whatever is happening to itself, उसका उल्टा होगा, because it is a as agent, है ना? Clear है? ठीक है. If any question will come like this. Let's say somewhere it is written as europium. Europium is in 2 plus. Now 2 plus is going to be 2 plus wants to convert into 3 plus. It wants to oxidize, hence reduces others, reducing agent. ठीक है? 3D block element iron plus 2 oxidation state is more stable than F3 plus. ठीक है? S2 is more stable than 3 plus. ठीक है? So let's say somewhere it is written as Fe3 plus. And Fe3 plus will go to Fe2 plus. It is reducing itself, oxidizing other. Fe3 plus is oxidizing agent. समझ में आया? क्लियर है? राइट? तो बस आपको ये देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चीज आ रहा है, उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं. नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट बहुत आसान है. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो दुनिया है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है. तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है. एजेंट का काम है दूसरों के लिए. अब आसान हो गया. हाँ बोलो रिया. This is the first time I am taking doubt. Riya, tell me yes. Riya Singh, you are saying anything? No. Chalo. Okay. Now the question is nomenclature of inorganic compound. ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा चलते हैं एसिड्स की तरफ. I have given you some idea. है ना. 2 पार्ट्स हैं एसिड्स के. पहला है लेट्स से हाइड्रा एसिड एंड दूसरा है आपका ऑक्सी एसिड्स. ओके नो प्रॉब्लम. अच्छा एक और मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी एप्लीकेशन समझ में आया, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको. राइट? ठीक है. जस्ट अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक एप्लीकेशन मिस कर दिया है. मिस किया है वो बता दे रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट से पहले. मान लो कहीं पे एक बॉन्ड दे रखा है ना. नेचर ऑफ HOX बॉन्ड. नेचर ऑफ HOX बॉन्ड मतलब कहीं पे लिखा है NaOH और कहीं पे लिखा है HOCl. So which one is going to be, let's say which bond is going to break in water? If this bond is going to break, then it is going to be base, and if this bond is going to break, you know, then it is going to behave as acid. So nature of HOX bond. Example समझ रहे हो? है ना? HOX. X का मतलब यहाँ पे elements है. ठीक है? या E लिख देते हैं. And don't get confused with XX. Generally is used for halogen. So HOE, E for element. तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस. जिसका ज्यादा होगा वो बॉन्ड टूट जाएगा. If electron negativity difference between OH is greater than OE, है ना,
OH bond will break. OH bond will break, and compound will be acid, and compound will be if electron negativity difference between OH is less than OE. ठीक है, OE bond will break and compound will be acidic. थोड़ा कॉमन सेंस भी देख लेते हैं. पानी में डाल रहे हैं, है ना. एसिड एंड बेसिक की बात का मतलब है कि पानी में डाल रहे हैं. पानी में डाला हमने, मान लो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा बनेगा. ऑक्सीजन तो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में समझो. जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पे, है ना, ये जो भी दो चार्जेस हैं जिसपे ज्यादा पॉजिटिव होगा, वाटर उसको उतनी स्ट्रांगली खींचेगा. अगर ये ज्यादा है तो ये वाला, ये ई पहले टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा. OH मिल गया. अगर ये वाला डेल्टा ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, राइट. तो H प्लस मिल गया, तो कंपाउंड एसिड हो गया. गेटिंग माई पॉइंट. OE मीन्स E फॉर एलिमेंट. E मीन्स एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. फिर से देख लेते हैं. What we are trying is we are comparing these two bonds, है ना. कौन कौन से बॉन्ड, HOE बॉन्ड कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये पहले बॉन्ड टूटेगा, ये पहले बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, अगर ये पहले बॉन्ड टूट जाएगा तो ये H प्लस की तरह निकल जाएगा, देन इट इज एसिड. अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये OH माइनस साइन की तरह निकलेगा, तो ये बेस. कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है. ठीक है, हाँ ये बेस है, बेस बेस बेस. मिस्टेक. ठीक है, ओके. ठीक है, ये बेस. अब इतना ये लॉजिक समझ में आ गया. अब इसका बेसिक क्या है, बेसिस क्या है. मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड है इसमें हम, आपको पता है ऑक्सीजन तो ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ही. ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. then it is going to pulling the electron, it is going to pull the electron from both, let's say hydrogen and element. so what will happen over here, डेल्टा कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, let's say डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डैश पॉजिटिव. जो भी ज्यादा डेल्टा होगा पॉजिटिव, उधर वाटर ज्यादा आएगा, स्ट्रॉन्गली पुल करेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू ब्रेक. ठीक है, अंडरस्टूड. so that's what we are doing, checking the electron negativity difference. We are checking the electron negativity difference. Let's say example लिख लेते हैं, NaOH. so ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप सबको पता है 3.5, सोडियम की 0.9, हाइड्रोजन की 2.2. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर, है ना, इसके बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 3.9 माइनस 0.9, 3.5 माइनस 0.9, 2.6. और इसके बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1.3. which bond is going to break, this bond is going to break, right. so it is base. let's say example HOCl, है ना, HOCl 3.5, 3.1, 2.2. the electron negativity difference over here 1.3, 0.4. which one is bigger, 1.3. which bond is going to break, this bond is going to break. acid H plus, यहाँ पे OH माइनस. क्लियर है. तो हम बता देंगे कि कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, अगर ऐसा कोई भी कुछ भी पूछा जाएगा तो.
बोलो। ये सर। हाँ सर, तो सर मेरे दो डाउट थे। पहला जो मतलब HOE जो बॉन्ड है सर, उसमें जो एलिमेंट वाला साइड अगर ब्रेक हो जाता है तो मतलब वो बेस है, और हाइड्रोजन वाला साइड ब्रेक होता है तो एसिड होता है क्या? करेक्ट करेक्ट। ओके सर। और सेकंड डाउट सर, ये जो आपने एग्जांपल्स अभी लिखा ना, तो मतलब जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो उसमें जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं वो क्या है सर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है। ओके सर। ये ऊपर नंबर लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर इजीली, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है, ये बताओ एक मिनट अच्छे, यहीं पे लिखा है AlOH होल थ्राइस, ठीक है, यहीं पे लिखा है ऐसे AlOH होल थ्राइस, राइट। खैर इसमें हम आपको समझाएंगे, तो OH माइनस बॉन्ड टूटता नहीं है, एक्सेप्ट कर लेता है ये। इसे इसको इस तरह से लिख लेते हैं Zn, या ठीक है AlOH होल थ्राइस भी लिख लेते हैं, ये OH। यहाँ पे Al का कितना है 1.5, 3.5, 2.2, ठीक है, यही है ना, राइट। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, राइट। तो भी AlOH होल थ्राइस से अगर आप मतलब चाहो तो ऐसे बोल सकते हो Al3 + 3OH माइनस, इनके बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर है ये बात? ये क्यों बताया, एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए। H3BO3 is actually BOH BOH OH। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सी एसिड्स में, अब मुझे याद नहीं है कि कितने लोगों को याद है ये बात, ऑक्सी एसिड में जितने OH बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके कारण हाइड्रोजन निकल जाते हैं। से अगर मैं बोलूं H2SO4, so I will say it is going to give you 2 hydrogen, correct. If I am going to say H3PO4, then it is going to give you 3 hydrogen. Clear है, correct. But H3BO3 does not give 3 hydrogen. H3BO3 does not give 3 hydrogen. क्यों? क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड टूटता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ जाता है ये। बट द प्रॉब्लम इज बोरॉन जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये तोड़ने की जगह एक्सेप्ट कर लेता है OH बॉन्ड, ठीक है। And that's why it is behaving as acid by breaking water. H3BO3 क्या करता है, अभी तो मैंने ये रीजन बताया कि ये टूट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। H3BO3 क्या करता है, वाटर से एक OH माइनस ले लेता है, वाटर को तोड़ देता है, बना देगा क्या, BOH। H3BO3 मतलब BOH का होल थ्राइस, राइट। तो बना क्या देता है, BOH का होल 4 माइनस H प्लस। तो H3BO3 एक्सेप्शन है ये, H3BO3 does not give H plus from its molecule, it gives H plus from water, and that's how it behaves as acid. H3BO3 का अगर हम बोलेंगे कितने हाइड्रोजन देगा तो एक ही देगा, नहीं देगा। ये 2-3 बातें एक्सेप्शन है, वो यहाँ समझाएंगे, फिर आगे भी समझाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर ये पता है डेटा, फैक्ट, if somebody knows then they can relate। ठीक है, अभी जिनको नहीं पता है डोंट वरी, अभी छोड़ दो, आगे आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। अब नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड, तो पहले हाइड्रा एसिड्स की बात कर लेते हैं क्विकली। हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, है ना, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल। नेम का रूल क्या है,
हाइड्रो इज प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, ठीक है, इक इज सफिक्स, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है, लेट्स से एग्जांपल, कहीं पे लिखा है HCl, कहीं पे एग्जांपल लिखा है HCl प्लस, इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहीं पे लिखा है लेट्स से H2S, दिस इज एक्वस, पानी में, तो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं पे लिखा है HCN, अब यहाँ पे CN है, CN के हिसाब से लिखेंगे, CN इज साइनाइड, तो इससे आएगा साइनिक, तो हाइड्रो साइनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी लिख लो, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कई सारे हम लिख सकते हैं। हाइड्रो ऑस्टेटाइनिक एसिड, AT मतलब ये पूछ रहे हो, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, आयोडिक, HI HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। तो एक थोड़ा ये नाम अलग है, साइनाइड से आ रहा है, साइनिक, और एक नाम ये भी अलग है, N3H, तो बोलते हैं N3 माइनस इज कॉल्ड एजाइड, N3 माइनस इज कॉल्ड एजाइड, तो ये थोड़ा अलग नाम है, तो इसलिए हाइड्रा एजाइड, एजाइड तो हाइड्राजोइक, हाइड्रा एजाइडिक है ना, तो इसको ऐसे बोला गया हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम अलग है, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रा एसिड्स हो गए। इनमें गैस में, इन गैस, ये सब एक्वस थे, है ना, ये है इन सॉल्यूशन। इन गैस नेम क्या है, हाइड्रोजन, अभी हाइड्रो की जगह हाइड्रोजन प्लस, है ना, नॉन मेटल प्लस आइड गैस, एग्जाम्पल लेट्स से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, आइडाइड, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्लियर है भाई, इसे हम कई सारे लिख सकते हैं। हाइड्राजोइक है ना, ए है, ए, स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ मैं, वैसे मेरे हिसाब से ए है, ठीक है। ए है, हाइड्राजोइक, क्लियर है ये बात, ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आ गई, इसमें डिफरेंस भी समझ में आ गया, HCl गैस में है तो उसका नाम अलग है, और एक्वस में है तो अलग है, राइट। तो HCl का जैसे नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, ठीक है। HCl भी लिख लेते हैं।
अभी इसमें लिखते हैं नेमिंग ऑफ एनायंस ऑफ, है ना, हाइड्रा एसिड्स, इसी में कर लेते हैं कवर। नेमिंग ऑफ एनायंस ऑफ हाइड्रा एसिड्स, मतलब कहीं पे HX है तो X माइनस का नाम क्या होगा, उसका नाम नेम क्या होता है, नॉन मेटल प्लस आइड, नॉन मेटल प्लस आइड। तो जैसे Cl माइनस एग्जाम्पल, Cl माइनस तो क्लोराइड, ये सब हमको पता है, तो मैं बस थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमाइड, Cn माइनस, है ना, साइनाइड। बस आपको पता, आपको ऐसा नहीं है नाम नहीं सुने आपने, तो आपको पता नहीं है ये कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है ना। साइनाइड, एजाइड, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यस, अगर कहीं पे सी, लेट्स से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, C4 माइनस लेट्स से आ रहा है, कार्बन पे कई सारे नेगेटिव आ सकते हैं, तो यहाँ वेरिएबल करते हैं, लेकिन मैं 4 माइनस लिख दे रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बाइड। N3 माइनस नाइट्राइड, ऑक्सीजन 2 माइनस, है ना, O2 माइनस ऑक्साइड, ये यहीं से आए हैं। मैंने जब बोला था कि एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड बोला था, तो आई हैव कंपेयर, है ना, CH4 NH3 H2, हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं इसमें से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ना, नाइट्राइड है ये। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये N पे 3 माइनस और ये N3 पे -1 है, इसमें कंफ्यूजन होता है। N3 पे -1 है, दिस इज एजाइड, और N पे 3 माइनस है, नाइट्राइड। क्लियर, याद रहेगा डिफरेंस, N3 माइनस एजाइड, N पे 3 माइनस नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्रोजन एक ही है, इस पे माइनस का चार्ज 3 है, और यहाँ 3 नाइट्रोजन है, इस पे -1 है, ठीक है। यशवर्धन समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गए नेमिंग ऑफ एनाइन, इनका फायदा कहाँ होता है, राइटिंग नेम्स ऑफ आयनिक सॉल्ट, नेमिंग ऑफ आयनिक सॉल्ट। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया, लेट्स से नेमिंग का रूल क्या है, नेम ऑफ केटायन, है ना, प्लस नेम ऑफ एनाइन, ऑलवेज केटायन पहले लिखा जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ केटायन प्लस नेम ऑफ एनाइन, विदाउट मेंशनिंग नंबर, विदाउट मेंशनिंग नंबर। जैसे अगर हम कहीं पे CO2 लिखें, तो हम यहाँ लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर मेंशनिंग द नंबर। So this is the difference between ionic and covalent. In covalent compounds we are mentioning the number di, दो ऑक्सीजन है ना, जैसे कहीं पे लिखा P2O5, तो वे लिखेंगे डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना, पेंटाऑक्साइड। So we are mentioning the number over here, ठीक है। Let's say when we are writing the, let's say, names of ionic compound, we don't mention the number, we believe that you can balance the number by this method, है ना, विदाउट मेंशनिंग द नंबर। रीजन क्या है, अगर कहीं पे लिखा है जैसे CaPO4, है ना, so we know that you can balance the number by this itself, by cross multiplication method, so we don't need to write the number, we will say calcium phosphate. You're getting my point? Understood? So we don't write the number, we just
just write name of cation, name of anion. So let's say now I am saying, I'm giving you the some example and you have to tell me. First example थोड़ा सा tough है. Let's say Ba बेरियम है ना, होल थ्राइस N2. बताओ भाई इसका ये क्या है, व्हाट इज द नेम? बेरियम नाइट्रेट. सबको समझ में आ रहा है? तो कहीं पे बेरियम नाइट्रेट बोला गया है तो आप फॉर्मूला भी लिख लोगे ना. नाउ यू विल से बेरियम मींस बेरियम 2+, नाइट्रेट मींस 3-. लेट्स राइट वैलेंसी ओवर हियर 2 and 3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई Ba3 and 2, right? Yeah. Another example, अगर कहीं पे लिखा है Ba सोचना पड़ता है ना, Ba(N3) होल ट्वाइस, ऐसे ऐसा लिखा है तो बेरियम एजाइड. ठीक है. नाइट्राइट पे बाद में आएंगे. ठीक है, अभी अभी जो समझा रहे हैं ना उतना समझो, आगे मत भागो इधर उधर, सब कवर कराएंगे. तो मेरे पढ़ाने के स्टाइल से ये तो समझ में आया होगा कि इन्फॉर्मेशन सर बहुत बताते हैं, तो टेंशन मत, बहुत बताया जाएगा, इतना बताया जाएगा कि लपेट नहीं पाओ. हो रहा है ना ऐसा, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि याद नहीं हो रही, तो वेट करो. एजाइड, अब जैसे मान लो मैंने बोला लेट्स से NaCN, ये क्या हो गया, सोडियम साइनाइड. और मैंने बोला लेट्स से CaCN होल ट्वाइस, तो क्या हो गया. So you don't have to remember, you just say calcium cyanide, है ना. आपको and similarly if something is written like this calcium cyanide क्या formula है, then you will say calcium CN +2 -1, just cross multiply, right. तो ये बेसिक अभी आपको इतना तो समझ में आ गया ना. रूल्स ये सेम रहेंगे, अभी हम बस एनायन चेंज करते जाएंगे, राइट. ये रूल सेम है, रूल याद रखना. रूल में क्या है, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, एंड यू डोंट हैव टू मेंशन द नंबर. एंड अलग अलग तरह के एनायंस आएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी हाइड्रा एसिड्स के एनायन और उनकी नेमिंग आपको बताइए. अभी ऑक्सी एसिड्स के एनायंस आने बाकी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस भी आने बाकी हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. टिल देन बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्ते. डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में आगे. CN-1 तो वैलेंसी 1. इससे देखो HCN था ना, HCN को तोड़ो H + CN -1. करेक्ट, समझ में आया ना. हाँ, फुल बुकलेट सॉल्व करना है, राइट. यस, हाँ बोलो चिंतन. सर एक चीज में डाउट था, मतलब end of valence electron is marked by a big jump in next ionization enthalpy. मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद फिर निकाला इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे एल्यूमिनियम है, राइट, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे, and it is going to have big jump, sudden jump मिलेगा. सर और एक ये वाले क्वेश्चन में एक डाउट था प्लेट का. बोलो. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आयन इज, मतलब वो वाला सीशियम लिथियम का. कहाँ पे, कौन से नंबर पे? 21. मल्टीपल चॉइस करेक्ट, गेट इट जेई पेज एडवांस. नंबर भी बता दो, थोड़ा आसान पड़ेगा मुझे. 192. 22 क्वेश्चन नंबर.
Sorry, 21. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आयन इज। तो इसमें आई थिंक करेक्शन था ना। करेक्शन था इसमें भी, हाँ ये मतलब होना चाहिए था ये कि और डी करेक्ट आयनिक होना चाहिए मोबिलिटी था। सबसे ज्यादा सीजियम वाली की होनी चाहिए थी, डी हाँ, होना पर चाहिए था। ए दिया है वहाँ पे। हाँ वहाँ पे कुछ अलग दे रखा था। ठीक है, एक बार ऐसा करना, अगर उन्होंने दे रखा है ना तो देखो ये हाँ। तो जनरल ऑर्डर है, हो सकता है इसमें कोई एक्सेप्शन हो। एक बार आयनिक मोबिलिटी का डेटा देख लेना, हर आयन का डाल लेना, आयनिक मोबिलिटी ऑफ सीजियम, आयनिक मोबिलिटी ऑफ रुबिडियम। देखो कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है डेटाबेस क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बट ये जनरल ऑर्डर यही है। मेरे को लगता है कि आईआईटी में भी यही क्वेश्चन आया था तो यही आंसर दिया था। तुम्हारे पास किसी के पास वो है क्या लास्ट 42 ईयर 43 ईयर आईआईटी वाले? अगर नहीं नहीं है तो सर। खरीद लो, नहीं है तो खरीद लो, वो तो रहना ही चाहिए। ठीक है, ऐसी खरीदना जो मतलब जिसमें पेपर मतलब नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो, देख लेना। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप ढूंढोगे ना तो उसमें पेजेस भी दे रखे होते हैं, जितने ज्यादा पेजेस होंगे मतलब उतना ज्यादा क्वेश्चन दे रखे होंगे उन्होंने। सर बोलो बाद में लेना पड़ेगा बाद। वो बाद में लेना ही है, हाँ अभी हाँ। खरीद लो। हाँ तो उसमें कुछ कुछ में ना चैप्टर के हिसाब से उन्होंने आईआईटी के वो दे रखे हैं, और कुछ कुछ ने ईयर के हिसाब से दे रखे हैं। तो ईयर वाला भी फायदेमंद नहीं है, चैप्टर वाला फायदेमंद है। जिन्होंने चैप्टर के हिसाब से दे रखे हैं तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए तो तुम उसको सॉल्व भी करते जाओ। ओके सर। ठीक है, सर और एक मेरे क्वेश्चन हिसाब में से तो डाउट डी होना चाहिए जो लॉजिक है, बट यस हो सकता है एक बार चेक क्रॉस चेक कर लेंगे कि कोई एक्सेप्शन हो गया हो कि भाई के प्लस का ज्यादा हो गया मतलब कम हो गया, देख लेंगे। और अभी ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना? हाँ जी बताया जो। हाँ सर, और ये द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज -200 किलो कहाँ जूल पे, पर मोल। कहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर? क्वेश्चन है, नहीं इसमें सर नहीं है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, -200 यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑप्शन 1 -142 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन 2 -702 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन 3 -332 किलो जूल पर मोल, और ऑप्शन 4 -348 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? -141। कम होती है ना, मैग्नीट्यूड देखना है। ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव मतलब दे रखा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है। एफिनिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में ये वैल्यू। तो 200 सल्फर का है और ऑक्सीजन का 141, ऑक्सीजन का कम होता है। एनीवे सर तुम्हें उन्होंने माइनस से इलेक्ट्रॉन कंपेयर नहीं एफिनिटी करना लिखा है है। वहां पे, हाँ एंथैल्पी नहीं, एफिनिटी कोई लिखा बात है। नहीं, वो वैल्यू वो दे रखी है, नेगेटिव में वैल्यू है इसका मतलब क्या है? हाँ एनर्जी वही मेरे रिलीज को है भी ना। वही डाउट था, हाँ हाँ क्योंकि वो एंथैल्पी माइनस में रहता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव था। कोई बात नहीं, आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है इन सब, इन सारे केसेस में जस्ट मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। हाँ जब साइन अलग अलग हो तब आपको फिर वो नंबर लाइन से कंपेयर करना है फिर। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब अगर गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो साइन अलग अलग है, किसी का +40 दे रखा है, किसी का -30 दे रखा है। पूछा गया बताओ एफिनिटी क्या होगी। तो अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ही वैल्यू दे रखी है +40 और -30 तो हम बोलेंगे +40 ज्यादा है। लेकिन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक हो गया, राइट? हाँ अगर गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है तो उल्टा करना पड़ेगा, -30 +30 हो जाएगा और +40 -40 हो जाएगा, राइट? साइन उल्टा हो जाएगा तो 30 वाला ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं ये लोग, बुक में जो छापते हैं ना उन्हें सही वैल्यू लिखनी चाहिए। अब एफिनिटी देके नेगेटिव देने का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वो मेरे को पता है कुछ बुक्स में ऐसा 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 रहता है, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप कंफ्यूज मत हो, आप एफिनिटी की वैल्यूज लिखो, एफिनिटीज की वैल्यू को सीधे कंपेयर कर लो। एफिनिटी की वैल्यू जो गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी उसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ पक्का ना? हाँ सर। हाँ ठीक सर और ये जो जो एक रिलेशन था ना बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी और एफिनिटी, है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी तो समझ गए, लेकिन वो साइड में एक और था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। हम्म एफिनिटी ऑफ एक्स क्यों है, मतलब -x क्यों नहीं है, मतलब एक्स का आयन क्यों नहीं आया। वो तुम बना के देख लो ना खुद से। एक्स लेट्स से प्लस से एक्स जा रहा है और एक्स से एक्स माइनस जा रहा है लेट्स से, ठीक है, राइट? और हाँ फिर सर। इसका उल्टा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ एक्स है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ एक्स माइनस है। हाँ
ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ x माइनस है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस है, या फिर डेल्टा एच ईजी 1 ऑफ, है ना, x प्लस है, और ये डेल्टा एच ईजी 2 ऑफ x प्लस है, और डेल्टा एच ईजी 1 ऑफ x है। ऐसा कुछ है। अब यू कैन से ये अपोजिट रिएक्शन है तो साइन उल्टा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, आती भी ये नेगेटिव है ना। हाँ सर, पर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जस्ट उल्टा। मींस ये किसके बराबर हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस इज नथिंग बट, अब यहाँ साइन का भी कुछ पंगा नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू है इसका उल्टा होगा। अब यहाँ नोटेशन सही लिखना सीखो, ये x और x माइनस होगा या x प्लस होगा, तो ये क्या है ये तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। ये नोटेशन में गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x क्यों नहीं था ये दोनों के बीच में? x इलेक्ट्रॉन प्लस एफिनिटी ऑफ x ये वाली है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x ये है, आयनाइजेशन है ना x। अभी मैंने बताया ना आपको, x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। हाँ हाँ नहीं, लूज कर रहा है ना, x तो लूज कर रहा है उस तरफ, नीचे की सॉरी, मैं तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा हूँ ना, ओहो, हाँ ये वाली ये वाली ये वाली, ये हो गई, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं ना, ये वाली रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x, मेरे दिमाग में आयनाइजेशन एनर्जी चल रहा था। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x ये हो गया। तो जिसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उसका एफिनिटी आएगा। हाँ, जिसका जिसका पूछा गया है वो ध्यान रखना है। यहाँ पीछे क्या लिखा है, x प्लस लिखा है, x लिखा है, x माइनस लिखा है, बस इसमें ही थोड़ा ध्यान रखना है। ओके सर। ठीक है, सर और जो स्केल वाला जो मतलब बीच में एक्सप्लेन किया था वो सब अगर नहीं रहा, स्केल याद रहा तो चलेगा वो फॉर्मूला? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मान लो अलग अलग सेम साइन है तो मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो, अलग अलग साइन है सबको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कन्वर्ट करो, और नेगेटिव से प्लस की तरफ बढ़ रही है, सीधी बात। ठीक है, ओके। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कन्वर्ट करो तो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएंगी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज नेगेटिव आने लग जाएंगी, और जिनकी नेगेटिव आएंगी उनकी पॉजिटिव आने लग जाएंगी। अब नंबर लाइन से कंपेयर कर लो। जैसे नियॉन है, नियॉन की पॉजिटिव आती है तो उसकी एफिनिटी क्या हो गई, नेगेटिव। आपको पता है ना, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी। हाँ, बस यही कह रहा हूँ। और स्पेशल केस तो वही वाले ना, ये नोबल गैस, हाँ, तो कॉपर, वो सिल्वर, मतलब गोल्ड याद रख लो। हाँ, और नेक्स्ट डाउट जल्दी क्रोमियम। पूछो। ओके, बोलो अंगारिका फास्ट। So page number 198. खैर ये तो मैं डिस्कशन करने वाला ही हूँ ना, अच्छा, कंसेप्ट में डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं फिर करूंगा ये सब डिस्कशन। ठीक है। हाँ सर, कॉन्सेप्ट में भी है। हम्म सर आप एक और बार आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनमें मोस्टली ट्रेंड सेम ही है ना। नहीं, अलग अलग हैं, उनमें एक्सेप्शंस भी बहुत बहुत हैं। पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का उल्टा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, तो जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का होगा उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का हो जाएगा। देखो आज जो क्वेश्चन कराया है उनमें देखो ये, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था। एनीवे, नाउ मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी में ट्रेंड जस्ट उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको जेड इफेक्टिव से देखना है और साइज ऑफ उससे देखना है कि क्या कहते हैं, across the let's say period you have to say z effective, or across the group you have to say size of let's say Radius. हाँ atomic radius, उससे देखना है। एंड वो एफिनिटी। एफिनिटी में कई सारे एक्सेप्शन है, मतलब उसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शन। बीच में कुछ Okay. पॉजिटिव वैल्यू है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ डिफरेंस है। हाँ, इसके जो पहले जिस दिन हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था उस दिन हमने शुरुआत पता है कहाँ से की थी, A प्लस बी गिव्स C प्लस हीट और माइनस हीट, वहां से स्टार्ट की थी। तो मैंने समझाया था हीट और डेल्टा एच की वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो हीट वैल्यू इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब जस्ट अपोजिट है साइन। जो एनर्जी रिलीज साइन में difference उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। हाँ। हाँ, ओके, तो उसे कोई और वे में समझा सकता है, मतलब क्या मतलब कह रहे हो? हीट
इन टर्म्स ऑफ हीट नहीं, कोई और टर्म से। जैसे मान लो आपने आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, नहीं, या फिर मान लो फ्यूजन, कुछ भी पता है लेटेंट हीट पता है। क्या होता है, मतलब कोई वैल्यू पता है? जैसे नहीं कुछ वैल्यू नहीं 540 कैलोरी कुछ था ना। नहीं, वैल्यू तो नहीं पता। अच्छा, कैलोरीमेट्री में ये 540 किलो कैलोरी ऐसा कुछ कैलोरी पर ग्राम ऐसा कुछ नहीं सुना था? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो यहाँ लिखा है H2O लिक्विड इज गोइंग इनटू H2O गैस, लिक्विड से गैस में जा रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ एनर्जी लिखेंगे ऐसे, क्योंकि देनी पड़ रही है। हाँ इसको इधर लिख सकते हैं माइनस एनर्जी, हाँ बट डेल्टा H जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, राइट? हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया रिलेशन, जो भी एनर्जी का साइन है और यहाँ डेल्टा H का साइन है, अपोजिट है। ओके। तो अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ, थैंक यू सर। बोल मेका। Yes, sir. So I had a doubt in comprehension type, page 193. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मान लो इसमें डाउट है ना तो मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग चले गए हैं, एक आध किसी को फिर डाउट होगा। Yes, sir. Question number 4 and question number 5. I just had a doubt in the terminology they used. Unipositive can. Question number 4. ये वाला ना कॉम्प्रिहेंशन 1, राइट? Yes, sir. आई थिंक इसमें कुछ वैल्यूज गड़बड़ है यहाँ पे, आई थिंक, क्योंकि Yes, but sir. I will give you some idea. Let's say you are going to see sudden jump फर्स्ट से सेकंड में, कहीं पे दिख रही है क्या सडन जंप? यहाँ पे दिख रही है, right? You can see now this Yes, has sir. become 5 times in comparison to all those, right? So for 5 to get to 25, it is very high, huge, right? So sudden jump, that means E element is having outermost cell में 1 electron है, it is having 1 electron in outermost cell, and this is confirmed by the electron affinity values. Electron affinity values काफी कम है, right? बट नेगेटिव है, मतलब ये एल्कली मेटल है, ठीक है? नाउ यू कैन सी एनीथिंग? नो, इससे और कोई आइडिया लग नहीं रहा है। अब देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इज वेरी हाई, सो इट इज गोइंग टू बी हैलोजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर लेट्स से ओवर हियर इट इज पॉजिटिव, मतलब ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है, एक्चुअली में ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? तो लेट्स से ये पॉजिटिव दे रखा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है? इसको अगर आप देखोगे ये 10 है, तो ये कोई इनर्ट गैस हो सकता है, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप भी हो सकता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ, राइट? Yes, sir. है ना? Sir, can And you? then you can see the pattern over here, मतलब थोड़ा ऐसा ही है कि पैटर्न देखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, अगर है ना ये सेम ग्रुप के हैं तो एक पैटर्न बना सकते हैं, राइट? इट इज वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी, फिर क्या है 12 वाले का है, फिर मतलब फिर क्या है 18 वाला है, फिर क्या है 30, 35, 50, तो इट इज कंपेरेटिवली वेरी हाई है यहाँ पे भी। अच्छा, ये पैटर्न इधर क्या हो रहा है, राइट? तो 16 के बाद फिर आया 25, 25 के बाद फिर क्या आया 30, 30 के बाद 50, 50 के बाद 65 और कुछ रह गया 45, 30 के बाद 45। सो यू कैन सी ओवर हियर ये ट्रेंड सेम ही है, मतलब इन दोनों में ट्रेंड चेंज हो रहा है केवल आपस में, है ना? 5, 12 एंड 25, Yes, sir. है ना? तो ये वाला सेकंड ग्रुप एलिमेंट हो सकता है नीचे वाला, हालांकि यहाँ वैल्यू निगेटिव दे रखी है तो आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, बट कैल्शियम कुछ और भी हो सकता है ना, इट कैन हैपन टू, कैल्शियम की वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आने लग जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चल बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए पॉजिटिव वैल्यूज है।
तो ऐसा कुछ Sir, हम, हाँ, yes, and can you please explain the term unipositive cation? unipositive means single positive. One uni means unielectronic means There's only one electron one in the electron. atom. Unipositive means one positive charge. So somewhere it is written as Na plus, K plus, kuch anything. That's a lithium plus, right? Anything. Then it is unipositive cation. Yes. Yes, sir, and just last one, bivalent ionic chloride, MCl2, question number 5. Question number 5, they are saying which form bivalent means 2. Valency is 2. So some like CaCl2, yeah, right, like this. So we have seen which element is able to, let's say, maybe D. So we have not completed the let's say question. So maybe it could be D. D can form, but we have to cross check. You can check the answer. If it is D, and it is okay. Noble gas, they are asking noble gas, and noble gas is only one. Then A is going to be noble gas. So sometimes you get some idea from the question itself, right? They are defining this as noble gas, right? Now remaining you can understand, you already have these two, you know. Now you can say these are going to be between carbon, let's say nitrogen and oxygen family, right? Or maybe nitrogen is not there because the ionization energy pattern is not changing, right? So nahi, theek hai na? हाँ, Yes, sir. ionization energy. So maybe this is aluminum, carbon, and oxygen family. Nitrogen is not there. Like this, it can happen. Yes, as check the Yes, that's all. which can form most stable unipositive cation. Let's say cation is going to be E. Which of the following one is least reactive element? Least reactive element is going to be A, noble gases. Which of the following is most reactive non-metal? Non-metal means halogen. Halogen कौन सा है? F. Yes, sir, I understood the rest. Thank you. Okay. Hello. Yes. Sir, can you please suggest the name of a book with previous year JEE questions? I have said now you can purchase last 40 years or 42 years somewhere like this, and 40 whatever. The name is not important. Last previous year IIT questions you can you can purchase. You can see which one is having more number of questions, more number of pages. Because see, right now it is very difficult to, let's say, have all the papers. Okay, JEE Mains are conducting so many papers every time, every year. So if you are going to, let's say, make a data of that, तो चाहे 2 या 3 साल की भी ही इतनी मोटी बुक बन जाएगी, और वो all those papers are not available. What you can do is one more thing, you can check the Resonance website. Souvik. Okay, sir. Thank you. Okay, Aril, let me complete. You can check the Resonance website. Every time the JEE main paper is happening, they are sincerely they are producing the answer key and they are solving, let's say, paper. So Okay, sir. it is happening from last many years. So you can check that. Okay, sir. Okay. So that's it. Any other doubt? Right. Polarization energy. I have to see in which context they are asking polarization energy. Then I will tell you. But polarization energy is related with covalent nature, covalent character. Jayesh, following what I'm saying? Polarization, covalent, right? Ionization, ionic. Okay, that's it. Then bye bye. Take care.